Good evening, my dear students. Today I will tell you about some important instruction that is used in your life. That instructions is like this: every student should be good listener so that they will be good speaker in their academic life, in their life. Okay, so that you will be get more and more knowledge. Every students listen me carefully. Today I am going to start lesson 1, matter in our surrounding. This chapter belongs to chemistry subject, matter in our surroundings. I will tell you about this lesson in both language, that means Hindi and English. Okay, I will tell you in both language, Hindi and English combined. So listen me carefully. Matter in our surrounding, that means matter, that means padarth. In, that means me. Our, that means हमारा. Surrounding, that means आस पड़ोस. That means matter in our surroundings यानी हमारे आस पड़ोस में जो उपस्थित मैटर्स है उसके बारे में, यानी मैटर्स यानी पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग. ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द मैटर. व्हाट इज मैटर, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मैटर. ओके, तो मैटर इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर मैटर इन सराउंडिंग लेसन. ओके, मैटर्स. Matter. What is matter? That means padarth. That means padarth. It is known in Hindi padarth. Any things which have mass. Any things which have mass and which occupy the space, those are called matter. Those are called matter. कहने का मतलब क्या हुआ? वे पदार्थ, वे वस्तुएं जो इस वातावरण में पाया जाता है और जिसके पास द्रव्यमान होता है और कहीं भी रख दें तो वो उस जगह को क्या करता है, कवर करता है, तो उतने एरिया को कवर करता है. तो इसी टाइप्स के थिंग्स को, वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं. क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स. दैट मीन्स एनी थिंग्स विच इज मेड अप ऑफ that constitute is called material. Material mixed to each other and matter is formed. So the definition of matter says about it's anything which have mass and occupies the space, that is called the matter. That is called the matter. For example, everything which are present in the universe which belongs to the property of matter, that all are matter. Okay, for example, bench, chair, marker, and we are also matter because we have mass and we occupies the space. So we are also called matter. We are also called
मैटर। कहने का मतलब हुआ दुनिया ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं, जो भी वस्तु में मास है, जो भी वस्तु कवर करता है एरिया को, वो सबको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। इसलिए हम लोग भी क्या है? पदार्थ हैं। क्यों? हम लोगों में भी क्या है? भार है। हम लोग भी जब बैठते हैं कहीं तो क्या करते हैं? एरिया को कवर करते हैं। सोते हैं तब एरिया को क्या करते हैं? कवर करते हैं। तो हम लोग भी क्या हुए? क्या हुए? मैटर हुए, यानी पदार्थ हुए। क्या हुए? पदार्थ हुए। इट्स ओके, दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक। नाउ I will write the definition of matter. Okay, please write down. Any things which have mass and occupy the space, then these things are called matter. For example, desk, bench, table, etc. Next, nature of matter. Nature of matter. This is your next topic. This is your next topic, nature of matter. What is the nature of matter? I will tell you about the nature of matter. Nature मतलब प्रकृति। Nature मतलब प्रकृति। मैटर माने पदार्थ, यानी पदार्थ की प्रकृति। Okay, nature of matter. What it says about itself? Nature of matter, that means many types of things are present, many types of matter are present in the universe, but they have no same physical property. Okay, due to this they have different nature of matter, है ना, अलग अलग है। जैसे यहीं पे ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल वी आर ऑल्सो। ओके, कुछ के पास देखिए कलर में प्रॉपर्टी है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नीला है, कोई पीला है ना। किसी को देखिए हाइट लंबा है तो कोई छोटा है, तो है किसी का थिकनेस दीजिए पतला है तो मोटा है ना। तो दीज आर द नेचर ऑफ मैटर। ओके, दे नेचर ऑफ मैटर, दैट मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल ट्विंस को ले लीजिए, एक ही माँ बाप के जुड़वा बच्चे को ले लीजिए, बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी, they are not same, they are not same. So nature of matter always shows the different property, that means different physical property. Okay, it's clear? Nature of matter, the nature of matter always show the different physical property. For
For example, twins have different physical property. According to color, size, height, etc., etc. Okay, these are the second topic of your, this is the second topic of your lesson 1. Next topic I will tell you about this. Third topic, a smallest particle of matter. Particle of matter, a smallest particle of matter. According to Rishi Kanad, it was said that the smallest particle of matter is atom. That means an atom. यानी पदार्थ की सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहा जाता है, ये ऋषि कनाद ने बताया। ठीक है, ऋषि कनाद ने बताया कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्म कण जो है, सबसे छोटी कण जो है, वो परमाणु है। In fact, it is true. A smallest particle of matter is called an atom. Okay. Fourth topic, formation of matter like human beings. Formation of matter like human beings. Human beings मानव प्राणी जैसे मैटर का फॉर्मेशन, because human beings are also matter. So I will tell you about the formation of human beings. According to Hindi poet Goswami Tulsidas, he said about the formation of human beings in Hindi poem. Matter is made up of 5 elements. That is described, that is said in Hindi poem by Goswami Tulsidas like this. क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा. What is the meaning of this? यानी कि मानव शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिल करके बना है, 5 एलिमेंट से मिल करके बना है। कौन कौन सा? विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स? तो दे आर, नंबर 1 क्षिति। क्षिति डैट मीन्स मिट्टी, क्षिति डैट मीन्स मिट्टी।
that is called in English soil, मिट्टी, soil. Next, क्षिति गगन, क्षिति जल पावक यानी क्षिति जल यानी पानी, वाटर, क्षिति जल पावक यानी आग यानी फायर, क्षिति जल पावक, गगन यानी आकाश यानी आसमान, क्षिति जल पावक गगन, समीर that means हवा, वायु, एयर. These are the 5 elements, क्षिति जल पावक गगन समीर. Okay, and at last, that means कहने का मतलब after the death they will return back. हाँ, return back from where? That means जहां से वो आया था फिर वहीं पे वो वापस क्या हो जाता है, चला जाता है. कहने का मतलब ये हुआ. ओके, जैसे when life was finished, that means life was finished, over, that means death of any human beings, living things, then जो प्राण होता है यानी जो हमारे शरीर के अंदर होती है, that is lighter than air, so it goes up in the sky. यानी ये प्राण जो होता है जब शरीर से निकलता है तो वो ऊपर की ओर गगन में चला जाता है, यानी आकाश में चला जाता है. तो देखिए, पहला गगन की ओर चला गया, आकाश में. नंबर 2, जब बॉडी को कहाँ ले गया, शमशान घाट में ले गया, वहाँ जलाने के लिए. तो जैसे ही मैंने क्या किया, फायर दिया, जो भी व्यक्ति जो जलाने गया, फायर दिया, आग दिया, वो क्या हुआ, जला, तो दूसरा क्या हो गया, आग में मिल गया. ठीक है. तीसरा नंबर, जब वो जल गया तो वो गैस में चेंज हुआ, उसके बॉडी का पार्ट्स, और वो क्या हो गया, एयर में मिल गया. देखिए 3 हो गया ना, पहला गगन की ओर, दूसरा आग में, और तीसरा कहाँ, वायु में. ठीक है. चौथा नंबर, बॉडी जल करके क्या बन गई, राख बन गई, ऐश बन गई. हाँ, और वो फिर क्या चीज़ में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, स्वैल में मिल गया. एट लास्ट रेसिड्यू पार्ट ऑफ आवर बॉडी, या डैट मीन्स क्या, लेफ्ट पार्ट, जो बच गया पार्ट वो बॉडी का, वो आपको कहाँ चला गया, पानी में डाल दिया, जिसे हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार क्या कहते हैं, पड़वा कहते हैं. हाँ, इस तरह से जो भी 5 तत्व थे, यानी 5 एलिमेंट्स विच आर यूज टू फॉर्मेशन ऑफ क्या, बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स, दैट कम बैक, दैट मीन्स रिटर्न बैक into the original place, यानी into नहीं, to the original place, that means कहने का मतलब to the original place. ठीक है. इस तरह से वो क्या हुआ, अपने ओरिजिनल प्लेस पर चला गया, वापस चला गया. तो ये शरीर का फॉर्मेशन होता है, जिससे बनता है बेटा, उसी में फिर क्या हो जाता है, वहाँ पे चला जाता है. ओके, अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म के अनुसार. ऐसे तो सभी के धर्म में लिया जाता है, ऐसा ही किसी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के द्वारा होता है, वो प्रोसेस होती है. हम लोगों में जो होता है इस प्रोसेस के द्वारा होता है, दैट मीन्स हिंदू धर्म. इट्स ओके. तो फॉर्मेशन ऑफ मैटर, ह्यूमन बींग्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक 5, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. Classification of matter. Classification of matter. This topic is last for today. So listen me carefully. What is the classification of matter?
ओके, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, जिसको हिंदी में हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, है ना। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन आइडेंटिफाई अबाउट एनीथिंग in easily way and in short time period. That is called the short period of time या short time period, that is called क्या? क्लासिफिकेशन, that is called क्लासिफिकेशन, है ना। तो इसे हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं मैटर का। तो यहाँ मैटर को क्लासिफाइड कैसे किया गया? तो मैटर आर क्लासिफाइड, मैटर इज क्लासिफाइड into three parts, three types mainly, तीन टाइप्स में, अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू स्टेट, स्टेट के अनुसार। व्हाट इज द स्टेट? स्टेट। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स मेनली। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 गैस, एंड नंबर 3 sorry, it was all by mistake, second number liquid and third number gas. Okay, now in next explanation, that means next day, I will tell you about the physical property of solid, liquid and gas, and I will tell you also difference between solid, liquid and gas according to physical property. Okay, thanks for today.